Okay, so the recording has started. Over to you, Ifra. All right, guys. Assalamu alaikum. I am Ifra Sayed and I am a psychology graduate. I have done my bachelor's in that. But today, for Wellness Wednesday's start, we will start talking about our emotions, on what they are, how we understand them, how are we going to perceive them. So, this is going to be a good, joyful ride. You will find great solutions, I hope, from this workshop to understand your own emotional monologue that's going inside your system, right? So let's begin. The the whole thing is called decoding your emotions. It means that you are trying to dissect your own feelings. आसान अल्फाज में आपके जो feelings होती हैं, जो आप किसी भी चीज के बारे में, either you feel happy, you feel angry, disgusted, all of these emotions are your day to day, things going on. How can you dissect them? How can you fix them, break them, solve them? This is how we will talk about and go about it, right? So let's begin. शुरू में ना ऐसा था कि अगर हम साइकोलॉजी का एडवेंट देखें, इफ यू लुक एट द बिगिनिंग ऑफ साइकोलॉजी, सो द पर्सपेक्टिव with which everything was going on was very outdated, और कहा जाता था कि there's only your mind which is functioning, working, and that is the only approach to solve your pathologies, your problems, right? फिर बाद में with a lot of work and researches एक dynamic, एक system based approach आई साइकोलॉजी के अंदर, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, जो आसान अल्फाज में ये होता है कि आप किस तरह अपने इमोशंस को समझते हैं और फिर उनको एक्सेप्ट करके उन इमोशंस को जो थोड़े खराब कर रहे होते हैं आपके इंटरनल मोनोलॉग को, उसको फिक्स करते हैं आप खुद ही, ठीक है? तो अगर मैं आपको स्टार्ट में बताऊं ना, तो हमें एक चीज सिखाई गई थी कि जब जब भी कोई किसी भी चीज का, किसी इंसान का, किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का, एनीथिंग यू हैव, उसके फंक्शन को चेंज करना होता है. इफ यू एवर वांट टू फिक्स द फंक्शनिंग ऑफ समथिंग, यू नीड टू फर्स्ट इमेंड द स्ट्रक्चर ऑफ दैट थिंग. जब स्ट्रक्चर को चेंज करोगे तो फंक्शन में अपने आप चेंज आ जाएगा. दिस इज समथिंग वी आर टॉट इन साइकोलॉजी व्हेन वी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर लाइक दैट, राइट? तो बिल्कुल इसी तरह अब आपने पहले तो स्ट्रक्चर समझना होगा कि आपके इमोशंस का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बेसलाइन क्या है, कहाँ से वो आ रहे हैं, और फिर क्यों आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं. जो कि नेगेटिव इमोशंस की हम बात करते हैं. पॉजिटिव वंस आर ग्रेट, बट दे शुड ऑलवेज बी इन अ मीडियोकर अमाउंट, राइट? नथिंग इन एक्सेस इज गुड फॉर यू ऑल. तो जब जो भी ट्रेडिशनल मॉडल्स थे, वो तो ये कहते थे कि आपकी एक ही पर्सनालिटी होती है, जो आपकी डिस्पोजिशन होती है, जो जेनेटिकली आपको मिल जाती है, ठीक है? एंड आपका जो भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट व्हेनेवर इट अराइजेस, it's going to feel like a personal failure or a lack of willpower because you're blaming everything to your own personality that you have. This was the outdated and redundant system that we had for years. फिर एक नया मॉडल रिप्रेजेंट किया गया जिसका नाम था मल्टीप्लिसिटी ऑफ माइंड. इट मेंट कि जो भी ये पैराडाइम आप पढ़ रहे हो ना, ये तो इसका रिवर्स कर दो. आप सब कुछ गलत सिस्टम को पढ़ रहे हो. तो जो नया पैराडाइम आया, उसने एक नया कॉन्सेप्ट जो आया, इट वाज सेइंग कि ह्यूमन साइकी जो है ना, जो आपका सबकॉन्शियस, कॉन्शियस लेवल है, व्हाटएवर यू आर अवेयर ऑफ, यू आर नॉट अवेयर ऑफ, everything is composed of parts rather than holistically looking at it. You're going to see things in parts and break it down, and then you will see कि, oh, all right, there was only one part of the personality that needed fixation, but you were trying to amend the whole personality and creating a whole problem out of it, which was not already existing. So the whole system is basically harmonized by the cooperation of different little parts, which we called as subcomponents of your emotions. तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना, बेसिकली वो आपका सप्रेस करना नहीं है आपके इमोशंस को. वो तो एक पूरा अंदर का जो आपका सिस्टम है, आपका ब्रेन है, आपका माइंड है, एक इंटरनल टीम है, उसको कोहेजन की तरफ लेकर जाना is what EI is called, is what emotional intelligence is known as. So ये जो सारी बातें हैं ना, I was reading a book for this, and at the end I would like to share it as well if anybody is interested in reading and really wanted to help
themselves, because psychology at the end of the day is helping your own self. You know, whoever wants to create self-help things for themselves, they come and study psychology to know about themselves and then try to fix their lives. Once you fix your own, you are very much ready to fix other people's life, right? तो अब हम आगे चलते हैं. तो इमोशंस को समझने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका जो भी इंटरनल मैकेनिज्म है ना, वो इनहेरेंटली पैथोलॉजिकल नहीं होता है. It is not disease causing. It is not conflicting all the time. It is the friction that is always present, जो आपके internal elements को harmonize करके काम करती है. बहुत ही प्रोटेक्टिव स्ट्रैटेजीज होती हैं आपके अपने माइंड और बॉडी की, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन हम खुद अपने थॉट्स को क्रिएट करके उसको पैथोलॉजिकल बना रहे होते हैं. आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो इट इज बेसिकली दैट वो एक इंग्लिश में वो हम सेइंग नहीं कहते कि 99% प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी इमेजिनेशन में होती हैं, और वो जो 1% होती है वो शायद रियलिटी में एग्जिस्ट करती हूँ. तो मैं उसी बात को जरा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बयान कर रही हूँ. फिर पैराडाइम शिफ्ट ने ये कहा कि आपका जो एग्जीक्यूटिव फोकस है ना, जो मेन फोकस है, जो सेंट्रल फोकस है, it's from shifted from trying to fix the broken personality to learn how to adapt, how to be valuable and how to protect those sub entities. ये जो बार बार मैं आप सब एंटिटीज की और सब कंपोनेंट्स की बात करेंगे लेटर ऑन, अभी इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि वो होती क्या है बेसिकली, बट अभी के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि होलिस्टिकली सॉल्व करने के बजाय आप उस पार्ट को रेक्टिफाई कर लो जहां पर एरर आ रहा है, जहां पे फिक्स करने की जरूरत है, जहां पे आपको लगता है कि दिस इमोशन इज अराइजिंग एंड इट इज ट्रिगरिंग मी समहाउ. फॉर एग्जांपल, यू वर हैविंग अ बैड डे, राइट? You went to the school, you went to the class, you went for the job, everything went haywire, there was a mayhem, there was something wrong, and now you're blaming your whole day that it was all wrong. So you're actually generalizing a problem for only one part of the day that went wrong. तो उस एक पार्ट को फिक्स कर लोगे तो आपको नहीं लगेगा कि आपका पूरा दिन खराब हो रहा था, because there might be like 2-3 events that were not going right? So this is the paradigm shift which we're going to learn today on how to shift our perspectives from monolithic mind कह लें या holistic mind से कह लें, और उसको आपने solve करना है to create a more multi-component, क्या कहते हैं उसको, multiplicity of mind create करनी है. अच्छा, एक और बात मैंने आपको एक वाइस क्रैक देना था, that is your brain is your organ. ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके आईज आपका ऑर्गन होते हैं, ठीक है, आपके ईयर्स आपके ऑर्गन होते हैं, और उसका फंक्शन होता है कि वो स्मेल करें, वो विजन क्रिएट करें. दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ योर ऑर्गन्स, राइट? सिमिलरली योर ब्रेन इज द ऑर्गन and your mind is the function of that, right? So now you need to rectify the mind. आपको माइंड को ठीक करना है, उस फंक्शन को ठीक करना है, तो पहले आपने रिवर्स में जाके उसके सब कंपोनेंट्स को ठीक करना होगा, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ व्हाट इज एन इमोशन. अच्छा, अब बिफोर delving deep into it, I would like to ask my audience that open up the chat box and I just want to know that what do you think emotion is, and then I'll let you know the psychobiological definition of what it is. आपको क्या लगता है कि emotions क्या होते हैं, क्या चीज होती है? आसान अल्फाज में आप just type it down and I will just give it a read and then we proceed further. Anybody who can volunteer to just type something for me, please. Yeah, anyone. I need you guys to engage to solve your own problems, learning about emotions. So you need to type something. What's it? Yeah, so no one knows what emotions are. Okay. So no one wants to volunteer right now, means that no one knows what emotions are. I would like to fancy that from this. Okay, so I'll let you know what emotions are. Okay, there's this one person who is saying that it's ability to feel and understand. I would like everybody to just type it down for me right now, and then at the end we could have a verbal discussions. They are feelings that we express. That's right. Okay, that's great. It's the inner response to the situations. Yeah, it's always internal. So the problem is always internal. You need to understand the inner system. Awesome. That's great. All right.
So now let's talk about the psychological way of defining emotions. Okay, and mood reacting to things around you. Great, thank you so much, thank you. Okay, अब इमोशन जो है ना वो आपका एक फीडबैक लूप है. इसको ना थोड़ा अब हम पॉजिटिव साइड पे लेके जाते हैं. रादर देन डिस्कसिंग द पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी, लेट्स टेक इट कि आपका ना एक न्यूरोबायोलॉजिकल सिस्टम चल रहा होता है. आपके न्यूरॉन्स भी काम कर रहे होते हैं, आपका ब्रेन भी एक्टिवेटेड होता है, आपका बायोलॉजी, आपकी फिजियोलॉजी, एवरीथिंग इज एक्टिव व्हेन यू आर इनकाउंटर्ड विद अ स्टिमुलस. स्टिमुलस मतलब कोई भी एक्सटर्नल एजेंट आ गया है आपको डिस्टर्ब करने के लिए. माइट बी आप यूनिवर्सिटी गए एंड सडनली देयर इज अ क्विज and that's a surprise quiz and you haven't prepared for it. आप लोगों ने साथ साथ पढ़ा ही नहीं था उसके लिए, and now it's going to be उसकी weightage जो होगी वो भी count होगी आपके finals के अंदर and all. So that's a sudden stimulus. उस time जो आप emotion feel कर रहे हैं, it's either gonna mobilize you or immobilize you. Mobilize मतलब either you're gonna move towards a solution for that all right, I have been encountered with this situation, now what? Right? Or either you'll completely freeze at the moment and you'll be like stressing out and burning out and be like, oh God, I wish I could have studied on time and this, that, and you're going to ruin your whole system accordingly, right? So emotion बड़ा ही neurobiological pathway होता है. ये नहीं होता कि सिर्फ उसके अंदर आपकी feelings होती हैं. वो feelings क्या होती हैं? वो feelings आपके neurons और आपकी biology होती है. आपके hormones कहीं ना कहीं उसके अंदर आते हैं जो एक loop की form में चलते हैं. Again and again आपको उसके साथ चलना पड़ता है. वो आपको सेफ्टी की तरफ या तो मोबिलाइज करेंगे, या आप अडेप्ट कर जाओगे एक सिचुएशन के साथ, और या फिर आप सोशली कनेक्टेड फील करोगे. ये वेरिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशंस है. अब जो मैकेनिस्टिक व्यू था ना, जो बड़ा ही मटीरियलाइजिंग सा व्यू था, वो ये कहता था कि इमोशंस जो है ये रैंडम नहीं होते हैं. ठीक है, इनके पीछे प्रॉपर बायोलॉजी एग्जिस्ट करती है. हमने कहा कि हाँ हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सैड फील कर रहे हैं. ओ आई फील रियली अपसेट अबाउट दैट बिहेवियर, दैट टैंट्रम दैट पर्सन थ्रू ऑन मी, राइट? There's a huge story going on in the background in your whole body. It's the physiological expressions of your personalities existing inside you. आप एक personality नहीं है. There are tons of personalities existing in you जो आप different situations में exhibit करते हैं. जैसे हम social psychology में जब बात करते हैं ना, तो we are like, you are never the same with your parents or your friends or your teachers or in a meeting or in a board meeting. You always show different personalities, right? So those sub personalities की जो physiological expression होता है ना, वो आपके emotions होते हैं. ठीक है, अब professional challenge तो ये होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं, जब हम ऑफिसेज में होते हैं, whenever we are dealing professionally in corporate world, तो हम ना अपने वो जितने भी incoming signals होते हैं ना, जितने भी stressors होते हैं, या तो हम उनको override कर देते हैं. We try to ignore those stresses because we feel like it is very trivial and unimportant to focus on the negativities that are coming our way. अब उससे क्या होता है, उस टाइम के लिए तो आपने उस इमोशन को सप्रेस कर दिया. मे बी किसी ने कोई क्रिटिसिज्म पास किया, मे बी कोई 10 किस्म की रिपोर्ट्स आपको इवैल्यूएट करने को आ गई, जो भी काम है. ठीक है, अगर आप उसे ओवरराइड कर रहे हो ना, तो नेवर एवर थिंक दैट यू आर ट्राइंग टू इंटेलेक्चुअलाइज दैट. आप उसको कभी भी अपने इंटेलेक्ट से सॉल्व नहीं कर रहे हो. आप उस चीज को फोर्स कर रहे हो कि वो एक और बड़ा पैथोलॉजिकल सिस्टम बन जाए जो लॉन्ग टर्म बर्नआउट बन जाएगा. Burnout मतलब कि you'll always feel tired and stressful and under anxiety and under the attack of all your emotions then. So it's like taking one emotion at one time and solving it. अच्छा, अब ये मोनोमाइंड और मल्टीप्लिसिटी तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब एग्जांपल से देखते हैं कि जब हम मोनोमाइंड की बात करते थे ना, तो वो पैराडाइम होता था कि मैं इनसिक्योर इंसान हूँ, मैं बहुत एंग्शियस हो जाता हूँ, या मैं फंडामेंटली ही लेजी हूँ, मुझसे काम ही नहीं होता, मैं बड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ. आप इसमें क्या कर रहे हो, आप खुद को इस व्यू के साथ आइसोलेट कर रहे हो अपने आप से. You are trying to isolate your inner self from what you truly are. You're blocking that behavior. You're trying to shift your own perspective towards something that is isolating you from the real self that you have. ये मोनोमाइंड पर्सपेक्टिव था. हम जो पढ़ रहे हैं, हमने जो सॉल्यूशन देना है, वो मल्टीप्लिसिटी पैराडाइम है. वो ये कहता है कि हाँ, माइट बी मेरा कोई एक सब पर्सनालिटी या मेरा कोई एक कॉन्शियसनेस का पार्ट जो है ना,
वो पैरालाइज हो गया है, या उसको स्ट्रेस हो रहा है, या वो एंजाइटी का विक्टिम बन गया है ड्यू टू एन प्रोटेक्टिव ड्राइव दैट इज अंडरलाइंग समवेयर वी डोंट नो अबाउट. तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है ना वो ये है, आपका जो मेन आपका एम और गोल होना चाहिए, दैट इज यू रिक्लेम, you try to meet the executive control of your own self. You shift that perspective from being the emotion to observing just the carrier of that emotion. The problem is how you're carrying that emotion. For example, any situation just occurs and you feel really, really angry or fearful. चले fear को ले लेते हैं. एक situation आपके सामने आई, ठीक है, वो कुछ भी लाइफ, कोई एनिमल की बात नहीं करी कि आपके सामने कोई जानवर आ गया एंड यू आर फियरफुल, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको डर लगा, ठीक है. अब पता है साइकोबायोलॉजी क्या कहती है, वो ये कहती है कि इफ यू फील इट इन योर हार्ट, इफ यू आर फीलिंग दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर हार्ट, दैट इज कॉल्ड फियर. If you feel it in your stomach and in your gut, that is stress. And there are a lot more emotions that are related to your organs, right? So आपकी physiology आपको बार बार बता रही है कि oh, there is something going wrong and please do not ignore it. Please try to shift that perspective that what was the carrier of that emotion that was going wrong. वो carriers मैं आपको अभी बताती हूँ कि वो है क्या. अभी तो आपके लिए ये थोड़ा सा ऐसे hogwash ना लग रहा हो आपको, but you'll know in the later part के what exactly am I talking about, right? So let's talk about how those carries, how you are carrying that emotion which is creating a problem. तो ये जो बुक थी ना about understanding your emotions, outlining the emotions, उसमें ना एक स्टैट्स बयान किया गया. जब भी हम नंबर से डील करते हैं तो बड़ा ही हमें एक लेजिटिमेट सा आंसर मिल जाता है. तो कहते हैं कि जो 73% लोग जो बहुत ही ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, हाईली परफॉर्मिंग और बड़े ऐसे वो अल्फा टाइप के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनका जो सिस्टम होता है ना डिफॉल्ट मोड पर, वो ओवरराइड कर रहा होता है हर किस्म के इमोशन को, हर किस्म के स्टिमुलस को जो उनके सामने आ रहा होता है, वो उसको ना डिजेक्ट कर रहे होते हैं, उसको अपने डॉज कर रहे होते हैं अपने सामने से, क्योंकि उन पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, वो क्रिटिसिज्म का भी शिकार होते हैं. लेकिन वो साइलेंटली ना अपने उन कॉशन सिस्टम्स को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे होते, वो बार बार उसको डॉज कर रहे होते हैं. फिर होता क्या है, आप एक दफा डॉज करो, आप 10 बार डॉज करो, आप 20 दफा करो, एक दिन ऐसा आएगा दैट योर होल सिस्टम इज गोना डिक्लाइन. एंड ट्रस्ट मी गाइस, देयर आर सो मेनी बुक्स ऑन पीपल हु वेंट ऑन अ टोटल डिक्लाइन मोड बिकॉज they were just ignoring their own emotions, which was just a simple emotion of being disgusted of certain feeling or being really angry about something, right? So this is how you're gonna intelligently solve and discern ki what are you feeling. Always whenever you're encountered with a feeling, because it's a psychological helpful workshop, I will always tell you to just reflect. दो मिनट का पॉज लो और सोचो कि what is this feeling. First question is going to be what, and then when you know, okay, I acknowledge that this is the feeling, then you go to the why of the question. You understand the structure and then you move to the function, right? अब psychological fallout हो जाता है उन लोगों के साथ जो बहुत ज्यादा हाईली फंक्शनिंग होते हैं, परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश कर रहे होते हैं. उनके अंदर ना अजीब सी कॉग्निटिव डिसोनेंस आती है विद टाइम, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि ओवरलोड होता है फटीग का, एंड द सिस्टम शट्स डाउन वंस. तो अब अलाइन कैसे किया जाए? मसला तो हो गया है, हम सब परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं, हम सब एक कट थ्रोट कंपटीशन वर्ल्ड के अंदर स्टेप इन करते हैं जब हम स्टडीज करते हैं या जब हम प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं. वी ऑल वांट टू compete and be the best of our versions, right? Now there is going to be a fallout at one time. तो अब अलाइन कैसे करें उसको, right? So how you're going to align is that your mind just go delve deep into the mind. अब सवाल ये है कि उस माइंड के अंदर कैसे जाएं? How to go inside your own mind? By doing this what you're doing right now is you're trying to understand your own mind. You're trying to understand the structure of your mind to solve your own issues, which is why you all guys are here, right? That is going to directly correlate with your cognitive capacities, then your decision making. फिर आप अंडर प्रेशर भी सब कुछ कर लेंगे. मैं आपको ना आसान लेमैन टर्म में समझाती हूँ कि ऐसा होता है डेली लाइफ के अंदर कि हम चाहते हैं कि हम हर चीज में बेस्ट हो जाएं. हम फिजिकल एक्टिविटी भी करें, हम जॉगिंग, वॉक, एक्सरसाइज, स्विमिंग, जो भी आपको पसंद है, पिलाटेस लोग करते हैं वो भी कर लें, फिर हम एकेडमिकली भी बड़े साउंड हो, फिर हम साथ में कुछ ना कुछ अर्न भी करें, बिकॉज दिस इज अ वर्ल्ड लाइक दैट वी आर गोइंग थ्रू, राइट? एंड देन यू नीड टू बी सोशल मीडिया पे भी खुद को अच्छा प्रेजेंट करें. दिस इज व्हाट पीपल आर दीस डेज, राइट?
अब होता क्या है कि जब when you are doing so many things at one time ना, your body tells you, keeps telling you, it keeps the score, don't do this, take a rest, take some rest. आपके कभी सर में दर्द होता है, आपकी बॉडी आपको बता रही होती है भाई थोड़ा देर रेस्ट कर लो. कभी आपके साथ कुछ और हो जाता है, your body is still shouting to, begging you to just stop and have some rest. When you don't do that, ऑटोमेटिकली ऐसे होता है कि आप बीमार पड़ जाते हो. ये मैं आपको आसान अल्फाज में बता रही हूँ, ये बायोसाइकोलॉजी है जो इमोशंस के पीछे काम करती है. आप बीमार पड़ जाते हो एंड यू टोटली शट डाउन. तो उससे पहले जरा आप ऑफ ले लेते हैं ना, उससे पहले एक दिन का ब्रेक ले लेते, कुछ आवर्स का ब्रेक ले लेते. सो दिस इज हाउ यू अलाइन योरसेल्फ, यू अलाइन योर माइंड एंड बॉडी विद द एक्सटर्नल प्रेशर्स दैट यू हैव. अच्छा, अब ना हम एक बड़ी मजेदार से एक इमेजिनेटिव गेम खेलेंगे व्हिच वी ऑलवेज डू व्हेन वी आर डीलिंग विद आवर इमोशंस. तो आपने ना इमेजिन करना है कि आप एक इंटरनल बोर्ड रूम में बैठे हैं, बोर्ड रूम जहाँ पे बड़ी बड़ी एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स होती हैं, ठीक है. यू विजुअलाइज योरसेल्फ, आपका कॉन्शियस माइंड बैठा हुआ है, ठीक है, और एक बहुत बड़ा बोर्ड रूम है, और आपकी जितनी भी सब पर्सनालिटीज है ना वो एग्जीक्यूटिव सीट से बैठी हुई हैं. आपकी सब पर्सनालिटीज कुछ ये हैं. एक अचीवर है, ठीक है, जिसको आपने ही सब कुछ अचीव करना है, आपने मैट्रिक्स भी सॉल्व करने हैं, आपने फेलियर को भी प्रेशर के अंदर भी काम करना है, आपने फियर ऑफ फेलियर को भी हटाना है. फिर आपके अंदर एक केयर टेकर भी एग्जिस्ट करता है जिसने फैमिली को भी सपोर्ट करना है, जिसने रिलेशनशिप्स के अंदर भी हार्मनी डालनी है. और ये हम सबके साथ हो रहा होता है. एवरी सिंगल डे वी आर डीलिंग विद दीज पर्सनालिटीज. फिर आपके अंदर एक स्केप्टिक भी होता है जो कहीं ना आपको नच कर रहा होता है कि ओ आई डोंट थिंक यू कैन डू दिस, तुम पहले भी तो नहीं किया, अब कैसे कर लोगे, ये कैसी स्ट्रैटेजी है, ओ कम ऑन, दिस इज गोइंग रॉन्ग, यू आर गोइंग द रॉन्ग वे. अंदर ही अंदर आपका अपना आप आपको कहीं ना कहीं एम्बैरस करवा रहा होता है किसी न किसी बात पर, ठीक है. फिर एक क्रिएटिव बंदा भी अंदर आपके बैठा होता है, एक अंदर आपके पर्सनालिटी बैठी होती है जो कह रही होती है कि ओ आई ट्राई टू फाइंड ऑल्टरनेटिव्स टू शिफ्ट माय stressors, and I will try to reject the boundaries that I have, and I will crave something, and I'll carve out a new novelty into my whole boredom and monotonous routine, and I will try to restrict something. ये वो 5 पर्सनालिटीज हैं, 4-5 पर्सनालिटीज हैं जो अब आपके सामने बैठी हुई हैं. तो अब आप इमेजिन करें कि यू आर इन अ बोर्ड रूम, आपका माइंड, आपका एग्जीक्यूटिव सामने बैठा है, ठीक है, और ये सारी पर्सनालिटीज ना उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है और सारे बैठे हुए हैं, ठीक है. अब अचानक से क्या होता है कि कमरे के अंदर ना, जहां पे आपके अपने माइंड की मीटिंग हो रही है, कमरे के अंदर एक डिसरप्टिव सा एक बंदा आता है, ठीक है, एक इनएनिमेट कह लें, एक फीलिंग एंटर होती है जो अनमैनेज सा पार्ट है और आपके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक आउटसाइडर है. एंड इट कम्स टू द फ्लोर एंड इट हाईजैक्स द माइक्रोफोन. वो आता है और आपका माइक आपसे ले लेता है, आपके माइंड से. अब आपने इमेजिन करना है कि आप नहीं खड़े हैं, आपका माइंड खड़ा हुआ है बिल्कुल सामने, कॉन्शियसनेस खड़ी है, आपकी अवेयरनेस जो है, यू वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग. और सामने आपके सारे बोर्ड रूम में यू आर द एग्जीक्यूटिव, और नीचे आपके सारे मैनेजर्स बैठे हुए हैं, आपकी सारी पर्सनालिटीज बैठी हुई हैं. कमरा नॉक किए बगैर somebody barges in and tries to take hold of the mic in meeting. This is just imagine it right now. This is what's happening. Now this is the imaginative technique of helping your own self. अब क्या होगा? Will you just stop and let that feeling take over you? Or you will try, or you'll just be a passive observer. चलो मैं देखता हूँ ये क्या कर रहा है. फिर एक और बंदा हाईजैक करने आ जाता है, एक और आ जाता है. कब तक आप देखते रहेंगे उस हाईजैकर को कि वो आपके और आपके सारे सिस्टम को रूइन कर रहा है? You have to step up at some time. You have to take the center seat and actively chair the meeting. But how are you going to do that? तो आप अब खुद अपने आप को डायग्नोज करें, बैठें और आइसोलेट करें खुद को उस फीलिंग से जो 7 दिनों में अभी तक आपको एक ऐसी फीलिंग से आप इनकाउंटर हुए जो डिसप्रोपोर्शनेट थी, जो कहीं ना कहीं ठीक नहीं थी. मे बी इट कैन बी कि आपको बहुत ज्यादा किसी बात पे गुस्सा आ गया और बात उतनी नहीं थी. मे बी आपने किसी बात पे कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले लिया. वो कोई भी फीलिंग हो सकती है आपकी. किसी एक बंदे ने आप पे थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया हो, या आपकी दोस्त आपसे नाराज हो गई हो, या आपने कोई चीज घुमा दी हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गुम हो गया आपसे और आपने उसमें कुछ जरूरत से ज्यादा ट्रिगरिंग उसे बना लिया अपने लिए, ठीक है. और फिर आपने क्या रिएक्ट किया उस पर? वॉज इट पैनिक? Was it anxiety? Was it total shutdown? Was it getting to the hospital and having those drips because you almost fainted? Because people do go through this thing. This is, you identify that microphone holder. अब आप क्या करोगे? अब आप पूछ रहे हो खुद से कि वो माइक किसने पकड़ा था? Who was that person? These are those people. Either it's the catastrophizer, जिसको लगता है oh God, सब कुछ खराब कर दिया, everything's gonna be the worst thing ever. वो worst case scenario सोचता है. क्या उसने माइक पकड़ा आपके सामने? क्या एक
हाइपर क्रिटिक ने आके पकड़ा है आपका माइक, जिसने कहा है कि भाई you messed up because you aren't good enough and you are stupid and you are lazy and you're putting the self blame again and again on yourself and you're very harsh, right? या फिर avoidant है. ये avoidant तो ना सबसे ज्यादा हम करते हैं. हम क्या करते हैं, हम फीलिंग को एक्नॉलेज नहीं करते. हम सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे स्क्रोलिंग शुरू करते हैं, ऐसा चलो छोड़ो, इसे जाने दो, इस फीलिंग को जाने दो. और यू स्लीप. बहुत से लोग दे स्लीप एंड दे डोंट एनकाउंटर एंड यू नो एक्नॉलेज द फीलिंग, राइट? या सडन इमोशनल नमनेस होती है. ये वो 3-4 लोग हैं, ये वो वॉइसेस हैं जो आपके माइक को पकड़ चुकी हैं. आई होप इट्स क्लियर टू सम पीपल बिकॉज आई वुड लाइक टू just give the chat to you guys one more time. I want to ask if you guys are clear or you want me to help you guys here, because it's not the easiest thing that we are talking about now. It's a lot of psychological jargons we are seeing. तो अगर मुझे कोई ऐसे चैट में थम्स अप दे दे कि कुछ समझ आ रही है तो फिर मैं आगे चलूंगी, वरना हम इस मोनोलॉग को दोबारा डिस्कस करेंगे. Just somebody who can just tell me that it's going okay and you're getting the concepts. All right, okay, awesome, great. अच्छा ठीक है, तो ये वो माइक होल्डर्स हैं जिन्होंने आपके जी, ये माइक होल्डर्स आप खुद ही हैं बेसिकली. ये वो सिचुएशन तो सिर्फ आई थी, लेकिन वो जो होल्ड किया ना माइक, आपने इन चीजों को अथॉरिटी दे दी, इन फीलिंग्स को. ये जो 3-4 फीलिंग्स मैंने लिखी हुई है, क्रिटिक को, कैटास्ट्रोफाइजर को, अवॉइडेंट को, कि भाई आप माइक पकड़ लो, अब जो बिहेवियर होगा ना वो कुछ यूं होगा. आप हार्श अपने साथ हो जाओगे, आप खुद ही को बार बार प्रोजेक्ट करोगे, और जब आप खुद को बार बार गलत समझ रहे होते हो ना, so you're never good with the people as well. You are again the harm to the society at the same time. So now you identify the shape of the voice. This was the shape of the voice. This one, these things. You identified it. ठीक है? It loses its power. उसकी power वहीं पे खत्म हो गई. And it just became a thought now. And now you just have to find out कि now how will I solve my profile. ये जो inner monologue चल रहा था, अब तो मुझे वॉइस का पता चल गया ना कि ये कौन है. जब पता चल गया, आइडेंटिफाई हो गया कि वो कौन था, तो अब तो आपने उससे उसकी पावर ही ले ली. now you're going towards the solution. Now you know how to help yourself, because we are bombarded with so many stresses every single day, and I'm again and again extrapolating on this fact. लेकिन होता क्या है कि फिर हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फीलिंग है कौन सी जो हम अक्सर हम फील कर रहे थे. लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना पर्सनल बताती हूँ. जब हम थीसिस कर रहे थे, हम 7-6 सेमेस्टर में जब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनिवर्सिटी के हैं, यू गाइज वुड रिलेट टू दैट. जब आप उन सेमेस्टर्स में आते हैं ना, यू आर बोम्बार्डेड विद सो मेनी स्ट्रेसेस, और फिर सबसे ज्यादा टेंशन होती है आपके सुपरवाइजर की, और आपको समझ नहीं आ रहा था कि वो फीलिंग एंगर की है, या यू डोंट लाइक द सुपरवाइजर, और यू हेट द सब्जेक्ट दैट यू आर स्टडिंग. What are you going to do? And then you are applying to the masters at the same time, or some people are applying to the job. So many things are there. And I remember when I was going through that, I was always angry. And I was so angry that whatever I was doing it wrong. और फिर जाके supervisor से और ज़्यादा डांट पड़ती थी मुझे, because I was not acknowledging my own emotions, कि मैं किस emotion से actually गुजर रही हूँ. Is it stress? Or is it coming from a lot of anger? But then why anger? Why am I angry? Maybe I am not putting my best in it. See, the achiever person is creating problem in me. तो मसला क्या था? मसला मेरे उन कैरियर्स ऑफ इमोशन का था, उन सब पर्सनालिटीज का था जो मेरे अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे थे, राइट? सो व्हेन यू ट्राई टू एक्नॉलेज दोस कॉन्फ्लिक्ट्स, यू सॉल्व हाफ ऑफ द प्रॉब्लम. अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये एक केस है, एक सिंपल सी प्रोफाइल है, आपकी ही प्रोफाइल है, आप जैसे लोगों की है, मेरे जैसे लोगों की है. होता क्या है कि आपके अंदर का जो अचीवर होता है ना, वो कहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए या इस प्रेजेंटेशन के लिए, व्हाटएवर द वर्क यू आर डूइंग, आई विल पुट माय एक्स्ट्रा एफर्ट एंड आई डू एंड आई प्रेजेंट अ हाई प्रोफाइल प्रेजेंटेशन एंड आई विल बी द बेस्ट वन. सिमिलरली आपके अंदर का जो स्केप्टिक बैठा होता है ना, वो आपको वार्न भी कर रहा होता है. वो आपसे कह रहा होता है कि जो भी कर लो, कहीं ना कहीं तो तुम फंबल कर ही लोगे. यू कैन नॉट बी अ परफेक्ट पर्सन. कहीं ना कहीं गलती तो हो ही जाएगी तुमसे. यू शुड मिनिमाइज योर विजिबिलिटी, कि तुम जिस लेंस से देख रहे हो, माइट बी यू क्रिएट अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स फॉर योर ओन सेल्फ. तो आपका एक इंटरनल पर्सनालिटी के लिए यू कैन डू इट रियली वेल. वही अंदर आपको वार्न भी कर रहा होता है एक और सिस्टम, एक और पर्सनालिटी, के भाई you cannot go all the way, you can't be the perfect person, perfectionism is nothing, you can't be perfect in anything. गलतियां तो होंगी, लूपहोल्स तो होगा, ठीक है. ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट स्ट्रैटेजीज हैं, आपके अंदर ही हो रही है ये. अब होता क्या है,
या तो आप हेजिटेट करते हो वो काम करने से, ठीक है, और या फिर आप उस काम को डिले कर देते हो कि चलो छोड़ो बाद में कर लेंगे। अच्छा अभी ना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी, ये चीजें हमें जो नेगेटिव लग रही होती है ना, इनके भी बड़े पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं जो भी आपके सामने आगे आएंगे। तो आइदर यू डिले द वर्क और यू स्टॉप डूइंग इट, दैट आई कैन नॉट डू इट बिकॉज I cannot do this. The fear of being judged or the fear of going wrong somewhere. You're doing it for the first time. उसकी वजह से जी मेंटल ओवरलोड होने लगता है, अगेन एंड अगेन यू कंज्यूम मैसिव अमाउंट ऑफ मेंटल एनर्जी आपकी लग जाती है और इन एक्शन होता है, आप कुछ भी नहीं कर पाते। ये हुआ क्या, ये अंदर का फ्रिक्शन था, कुछ ना कुछ रब ऑफ हो रहा था, आपके डिमांड्स और आपके वार्निंग आपको ही फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा था। और जब वो फ्रिक्शन अनअटेंडेड रहता है ना, तो वो कभी भी आपको प्रोटेक्ट नहीं करता, वो आपको और ज्यादा हार्म कर लेता है। इट कंटिन्यूज टू कीप यू स्टक इन दिस लूप। दिस इज द लूप आई वाज टॉकिंग अबाउट। दीज आर योर इमोशंस, दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व इट, यूजिंग EI, व्हिच इज बीइंग इमोशनल इंटेलिजेंट। तो अब देखें, मैंने जो अभी आपको बताया ना कि परफेक्शनिज्म आपको लगता है कि मसला क्रिएट करती है ना, ऑब्सेसिव है आप चीजों को लेकर, यू आर ओवर अचीवर, यू आर ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ। सरफेस पे तो आपको यही लग रहा है, बट कहीं ना कहीं उसका एक पॉजिटिव इंटेंट होता है, which is it shields you from so much humiliation and rejection because you tried to give not your 100% but might be 112% or maybe 120%. You went above board it and you did it and you solved and you shielded yourself from your own self humiliation. प्रोक्रेस्टिनेशन, आप काम को डिले तो कर देते हैं, पर यहाँ ऑडियंस में बहुत से लोग होंगे, मेरे अपने बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो क्या करते हैं, काम को सारा महीना डिले करते रहेंगे, लेकिन आखिरी 2 दिनों में दे विल डू सो वेल, ठीक है, वो अपने सिस्टम को इतना प्रिजर्व कर लेते हैं रादर देन स्ट्रेसिंग। मैं उन लोगों की बात नहीं करी जो प्रोक्रेस्टिनेट करके स्ट्रेस करते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो क्रॉनिकली ही ऐसे अपने आप को समझ रहे होते हैं कि वो डिले करते जाते हैं और फिर एकदम वो काम कर भी लेते हैं, इट टर्न्स आउट रियली वेल। So there's always a good side to it at the same time. Then there's a people pleasing person जो हर वक्त लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा होता है। हमें एक आपका इंटरनल मोनोलॉग आपको कहता है कि भाई प्रोफेशनल बाउंड्रीज बनाओ, हर किसी के साथ आप अच्छा नहीं रख सकते, यू नीड टू बी क्रिएटिंग बाउंड्रीज एंड यू नीड टू बी वेरी प्रोफेशनल इन सर्टेन एस्पेक्ट्स। बट देन there's a good point to it as well, which is that you created a lot of social harmony around you. And now when you go disruptive about you, about your own self, there will be people around you who will protect you, right? So these behaviors are not at all flaws. The system is not flawed. It's just the external agent that is flawed, and we take it on ourselves and we blame it and we put it on ourselves that, oh, we are the ones who are flawed, right? So these are the protective strategies. They are serving you, they are your servants, these are your slaves, and you just need to know ke un sub strategies se, un protective mechanism se काम किस तरह लेना है। उनको आपको लीड नहीं करना है, आपने उनको लीड करके चलना है, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन ये है कि आप खुद को सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करो, सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम द इमोशन दैट यू हैव। आपको ये एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ कि एक्शन और रिएक्शन के बीच में जो है ना, वो आपका डिसीजन होता है। अभी आपके लिए एक्शन ये था कि आप सब ये साइकोलॉजी की वर्कशॉप लेना चाह रहे थे फॉर XYZ रीजंस, रिएक्शन आपका इसके बाद हमें पता चलेगा, बट अभी आपने जो लिया है और आप सब यहाँ पे आए ना, दैट्स द डिसीजन दैट यू टुक, दैट इज द पाथवे टुवर्ड्स द सॉल्यूशन दैट यू गोना हैव, राइट? देन वैलिडेट इट, एक्सेप्ट दैट इमोशन, आइडेंटिफाई दैट इमोशन, व्हाट इट इज, ये क्या इंटेंशन है मेरी, और फिर आप जाएं ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। और ये मैं ये कभी भी नहीं कहूंगी कि आप ये वर्कशॉप लेकर you'll find solutions to all your emotions. It's not a one-day work. It takes years and months to develop if you are consistent and more disciplined to help your own self, right? So ये जितनी भी feelings है ना, ये एकदम नहीं आ जाती हैं। It takes a lot of practice, a lot of homework, a lot of tasks, a lot of mental load to solve these problems for your own self. तो ओल्ड पैटर्न में हमने क्या पढ़ा था कि सारी पर्सनालिटीज फ्यूज हो चुकी हैं, होलिस्टिक हो चुकी हैं, फाइट कर रही हैं, फ्रिक्शन और सब कुछ स्टक हो चुका है। नया पैटर्न जो आज हमने सीखा वो ये था कि पहले तो अवेयरनेस आ जाए आपको, जो कि आज आई होप थोड़ी बहुत आपको आ गई होगी, अपने अचीवर टाइप की, अपने केयर टेकर टाइप की, अपने स्केप्टिक की, जो आपके अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। फिर आप उसे वैलिडेट करें कि ओके, आई हैव दीज थिंग्स एंड आई एक्सेप्ट देम, now I will work on realigning them. And there are multiple ways on realigning your own emotions to make it pathological. उससे अच्छा है पहले ही आप उसको solve कर लें।
तो सिंपली आपने एक इंटरवेंशन, आपने खुद ही एक इंटरवेंशन डिजाइन की, आपने खुद एक बोर्ड रूम बनाया, ठीक है, उसके अंदर आपने देखा कि मेरे फिजिकल एकोस कहाँ से आ रहे थे, was it from the tightness in the chest or was it from the elevated heart rate or was it from the throat constriction? This is your physiological triggers. फिर आपने उसको मेंटल की तरफ शिफ्ट किया कि अच्छा अब मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, या मुझे डिजायर टू लाइक समथिंग है, या आई वांट टू बी एक्सेप्टेड इन माय सोसाइटी, या मैं डिसअपियर होना चाहता हूँ, आपने उसकी तरफ शिफ्ट लेके गए. And then you go to the underlying core of everything, that what are you trying to protect me from right now? Abhi main khud ko kis cheez se protect kar raha hu, and what do you need from me to step back? These are the questions you're asking yourself. So it's like a step to step procedure on helping and understanding and doing a cognitive reset of your emotions, right? So boiling it down, ending it on this note कि you don't have a broken psyche, you don't have a broken personality. It's just that आपका system इतना diverse है, इतना ज्यादा है कि आप इतने ज्यादा उसके अंदर evolve होते हो कि आप naturally उस काम को solve कर नहीं पा रहे होते हो. So there are no malicious parts in your emotions. आपका जो emotional DNA है ना, जो उसकी genes है ना, वो कभी भी malicious नहीं होते, वो malice नहीं कर रहे होते, आपको threat नहीं कर रहे होते, वो overly attached होते हैं क्योंकि आपने अपने body को इतना inundate किया होता है चीजों के साथ. So simply be aware. Highly emotional, intelligent people, what they do is that they stop fighting. They stop fighting with their internal systems. They try to establish a calm and integrated system and become the leader of their own thoughts. Okay, so simply looking back, अपना बोर्ड रूम बनाइए, सोचिए कौन सी फीलिंग्स हैं, किस सीट पे आप बैठे हुए हैं, किस सीट पे आपकी डिफरेंट पर्सनालिटीज बैठी हुई हैं, ठीक है, ये आपकी सारी पर्सनालिटीज है जो हम डिस्कस कर चुके हैं. किसको अपनी जगह पे रखना है, किसको सैलरी ज्यादा देनी है, किसको लीड करने की जरूरत है. यू आर द सोल्यूशन फॉर योर ओन माइंड, राइट? एंड देन इंटीग्रेशन के लिए आई हैव दिस बुक दैट आई फॉलोड. If you read this, you're gonna get the same layout which we just talked about. तो इसके अंदर बहुत सारी worksheets हैं if you really wanna go deeper and help yourself. So this is it for today. Simply telling you guys that emotions are just the carriers, and you just need to find out which carrier is that. And if you just identify it, half the problem is solved, right? So this is how you organize. This is how you become emotionally intelligent. It's never a one-day task. It takes a lot of hard work. But if you really want to be sound and happy with your own self, you need to work hard in order to achieve that. Thank you so much for joining, for coming, taking out the time, for rectifying your own selves. I'm really happy that people like you are engaged in helping their own selves. I would like to open the chat box again. And if there are any questions I would like to answer, I will definitely do that. So anything, any thoughts, anything you want to share, you want me to say it aloud or something like that. We take 5 minutes and then we end it. Okay. So I'm all open. I'm looking at the chat box. Anything you want to write or say something. अस्सलाम वालेकुम मैम. Yes, walaikum assalam. मैम मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं इमोशंस के अबाउट. तो सबसे पहले ये है कि आपने पीपल प्लीजिंग उसकी बात की, बिहेवियर की. तो क्या ये मतलब किसी इंसान में ये चीज डेवलप जो होती है वो एक फैमिली से डेवलप होती है या सोसाइटी से, या ये एक इंसान की अपनी एक पर्सनालिटी के ट्रेट होती है? क्योंकि मैंने खुद ये चीज देखी कि ऑलमोस्ट हमारी फैमिली इस तरह प्रीच कर रही होती है कि आपने लोगों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करना है और लोगों के साथ मतलब उन्हें कभी ना नहीं कहना है, और मतलब इस तरह कुछ बड़े होते हैं तो उनकी मतलब अगर कोई भी मतलब आपसे एक दिन भी बड़ा हो तो उससे इस तरह रिस्पेक्ट से पेश आना है. लेकिन यहाँ पर जो सिनेरियो है वो कुछ बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि इस तरह हर कोई इस तरह बड़ा जो है वो इसके काबिल नहीं होता है कि हम उसकी इतनी रिस्पेक्ट करें या उस तरह. तो ये चीज पर हमारी जो पीपल प्लीजिंग जो एक बिहेवियर है ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होती है. हम फिर खुद एक कॉग्निटिव डिसोनेंस या इस तरह हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी में से वो भी कहते हैं इंटरनल साइकिक कंफ्लिक्ट के या इंटरनल वार के हम शिकार हो जाते हैं. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. So is it harmful or not? This is your question, na, Isa?
यस, ये हार्मफुल है और नहीं, और दूसरी ये कि हम किसी बंदे की एक पर्सनालिटी में खुद होती है या किसी फैमिली या सोसाइटी से डेवलप होती है? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। देखें, जब भी कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम होता है ना, तो हम उसे एक मॉडल से पढ़ते हैं। एक होता है बायो, एक होता है साइको, एक होता है सोशल। ये एक बहुत बड़े एक डॉक्टर थे, डॉक्टर टर्न साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था आर्थर क्लेनमैन। उन्होंने ये मॉडल दिया था बीपीएस मॉडल के नाम से। यू कैन जस्ट गो एंड सर्च ऑन इट। तो मैं जब भी ये पीपल प्लीजिंग और जितने भी सोशल कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, ये इन तीनों से अराइज होते हैं। या तो आपका जेनेटिकली आप इस किस्म के हैं कि आपकी फैमिली में इस तरह के लोग थे तो आप भी वैसे हैं, ठीक है। या फिर साइकोलॉजिकली आप इतने, आपको सिखाया गया, आपकी कंडीशनिंग की गई है, जिसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं कि नो नो, यू नीड टू बी गुड टू अदर पीपल, यू नीड टू बी डूइंग दिस, जो भी अभी आपने बात की, ठीक है, वो आपकी साइकोलॉजी हो गई। और या फिर आपको सोसाइटी में फिट होने के लिए करना ही ये पड़ता है ईसा, यू हैव टू बी लाइक दैट एंड यू आर बीइंग टोल्ड लाइक दिस। आपको कहा गया आपने करना ही इस तरह है। तो अब सॉल्व कैसे किया जाए इस मसले को? इसीलिए ना फिर हम साइकोलॉजी में सिखाते हैं कि विदाउट ट्रैम्पलिंग ऑन द राइट्स ऑफ अदर्स ना, लर्न टू बी असर्टिव। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गो एंड सर्च ऑन व्हाट असर्टिवनेस इज। असर्टिवनेस ये नहीं होता, मैं आपको आसान से अल्फाज में बात करती हूँ। देखें, आपके दोस्त हैं, ठीक है, आप क्लास में पढ़ते हैं, बचपन की बात करते हैं, चलें, आपके दोस्त ने आपकी कोई नोटबुक ले ली या आपका कोई पेन ले लिया जो आपको बड़ा पसंद था, और उसने कहा कि मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, अब आप लिहाज में उससे कुछ कह ही नहीं रहे हैं, यू आर लाइक बस ठीक है, दोस्त है मेरा, बट यू रियली लाइक दैट पेन एंड यू रियली लाइक दैट नोटबुक, वट एवर दैट वॉज, यू रियली लाइक इट। अब कैसे सॉल्व करें इसको? आप दिल भी नहीं तोड़ना चाहते उसको, ये कॉग्निटिव डिसोनेंस आ गई बीच में। अब आप क्या करोगे? You just go and softly tell that person कि look, I gave you my pen and it was बड़ा मुझे पसंद था, मेरे डैड ने मुझे दिया था, ये जो भी, can you give it back to me? I really want it. And trust me, Isa, you know what? If you do it once, I promise you, you will create so many ease in your life, so much ease ना, कि आपका ये dissonance ना 1 सेकंड में गायब हो जाएगा, just because you were assertive. ये assertiveness होती है. You asked for your own thing. You asked for your own right, right? By not trampling on theirs. आपने उनको hurt नहीं किया है किसी भी situation में, आपने सिर्फ अपनी चीज मांगी है उनसे, आसान अल्फाज में। तो ये जो साइकिल है ना कि हमने लोगों को प्लीज करते ही रहना है, करते ही रहना है, दिस वन सेंटेंस कॉल्ड नो, जस्ट नो। आप एक दफा ना बोले, कुछ भी नहीं होगा, दिल नहीं तोड़ रहे हैं आप उस बंदे का। और वो ऑनेस्टली ईसा एंड एवरीबडी, यू ऑल, nobody is that free. हम साइकोलॉजी में ना एक कॉन्सेप्ट होता है, हम कहते हैं कि हमें लगता है कि हम ही हर वक्त स्पॉटलाइट के अंदर फिर रहे हैं, कोई इतना आपको ना देख रहा है ना जज कर रहा है, उसको याद भी नहीं होगा कि उसने आपकी पेन लिया था, आपका पेन लिया था, या दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ द एग्जांपल, देयर आर मेनी अदर लाइफ लॉन्ग एग्जांपल्स एज वेल। तो इंटरनल वैलिडेशन छोड़ दें, एक्सटर्नल वैलिडेशन को भी छोड़ दें, सिर्फ ना बोलना सीख लें। और ना इज नॉट रिजेक्टिंग समथिंग और बीइंग रूड टू समवन। ट्राई टू लर्न टू बी assertive and that's it, and you have solved half of the problem. There's one more question. What is, Isa, I hope it helped. Be very assertive, learn to say no, okay, and yes, you help yourself. Okay. Ma'am, one other question. Yeah. मैम, वो ये है कि आपने डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स की बात की है, क्या मतलब हम किसी बंदे की बिहेवियर को किस तरह वो कर सकते हैं, हिडन बिहेवियर को? मैम, मेरा क्वेश्चन ये सिंपल एंड दैट कि डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स को हम सिर्फ रिफ्लेक्शन के लिए किस तरह यूज कर सकते हैं, रेदर देन ओनली एनालाइजिंग अदर पर्सन बिहेवियर, अदर पर्सन इमोशन? Isa, you know what? The simplest thing I would say is कि आप पहले ना, सबसे पहले दूसरों को समझने के बजाय ना खुद को समझे. This is why you are here. Trust me. Now, Okay. when I tell you this, you will realize that why you are here, because you want to solve your problems first. When Okay, you ma'am. help yourself, you are ready to help others. That is the only way. That is the Thank only you. way. Yeah. Thank you so much. Yeah, so there's one more question I would like to acknowledge, and it says that what is your take on climate anxiety, and in which category of people could it be more common? All right, Daniel, that's a great question. I remember I did my one of the undergrad research on climate anxiety, and it was done on children. वैसे तो जितने भी सबसे ज़्यादा, Mehrun Nisa, I'll come back to you just in a while. Let me answer this. It's very off topic, but still,
अभी कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड है क्लाइमेट एंजाइटी, तो सबसे पहले तो ये है ना कि यू आर फीलिंग वेरी पैरालाइज्ड एंड यू आर फीलिंग वेरी अपसेट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन योर एनवायरनमेंट, राइट, एंड यू कैन नॉट डू समथिंग. हम इसके अंदर कहते हैं डूम, डिसोनेंस, डिस्टेंस. आप इतने दूर हैं उन इलाकों से, ठीक है, तो फिर आपको एंजाइटी कैसे हो रही है? पहले तो ये सवाल है ना. तो मेरा टेक तो ये है कि एंजाइटी किसी को भी हो सकती है. सबसे पहले तो उन लोगों में होगी, तो ये हिराकी में चलता है ना, उन लोगों की होगी जो सबसे ज्यादा उस एरियाज में रहते हैं, जिनको जो सब्जेक्टेड हैं क्लाइमेट के साथ और वो चेंज को देख रहे हैं. बट अभी तो मुझे लगता है कि हम भी एक ऐसे एनवायरनमेंट में आ गए हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर इन दैट ग्लोब जो एंथ्रोपोसीन बन गया और नुकसान किए जा रहा है. सो it can exist in any person whoever is worried and is caring for their environment, and that anxiety should not paralyze you but help you to take actions. I hope it clears your question, Daniel. Yes, Mehrunassa. All right, Assalamu alaikum. Yes, I hope you're doing well and everything is perfect. So, all right. So, right now, here we are in a session where we are here to work on our mental health. So, first of all, when you get into the social life, the more you get to know about yourself and the more you get to know that how to basically control your emotions. Here's a very thing that most of the people are struggling with. Either it is relationship, either it is your friendship or anything. Uh, Emotionally dependence on any other person or on anything, okay? And when you are trying to get out of it, a lot of people struggles from it. They feel like they are not enough for themselves. So what do you think, what should be like in this scenario, because a lot of people go through anxiety issues and depression and everything, and it is also affecting on your like you can see those symptoms of panic attacks or anxiety attacks in your organs as well. So how to deal with such situation? Because first of all, I guess it's very important for us to feel confident about ourselves and being fully on ourselves so that we don't need to depend on other person. But if anybody is suffering from that thing, so what are the different steps that a person should follow? That's it. Okay, Mehrunassa. Thank you so much. I hope you are good too, and thank you for joining. तो पहला तो आपका आसान सा मैं सवाल का जवाब देना चाहूंगी, वो ये है कि सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ये जो इमोशनल डिपेंडेंस है ना, where is it stemming from? You need to find the root of that, right? If you or somebody else you know is emotionally dependent, you are basically seeking proof of your worth externally. आप खुद को इतना वर्दी समझते ही नहीं, आप अपनी वर्थ दूसरों से सीख करना चाह रहे होते हो. This is for everyone whoever thinks that they are emotionally dependent on someone, and they can be anyone, your parents, your siblings, your friends, anyone in your life. तो externally आप खुद को validate कर रहे हो. आसान तरीका सिर्फ ये कि डायरेक्शन चेंज कर दो वैलिडेशन की, उसे इंटरनल कर दो ना. और ये आसान बिल्कुल भी नहीं होता है. इंटरनल वैलिडेशन तो सबसे मुश्किल होती है. हम सबसे बड़े अपने आप के क्रिटिक्स होते हैं. Like, I am nothing without them. If they don't, if something is happening to them and we are not going to do this and we won't, we'll be paralyzed and we won't be able to do this. These are very negatively affirming statements, right? So first find out how it is limiting you, because you are limiting your worth to external people out there. ये सारी जो workshops है ना, they are here to train you on first make yourself worthy of yourself first. Sit down with yourself every single day, maybe 5 minutes or 10 minutes, and sit down and practice this, that you are worthy. Stop relying on other people, rely on yourself first. If you can rely on yourself, you will never ever find solutions outside, and you will never need emotional dependence. I have met people, Mehrunassa, trust me, and I have worked with women. I have worked in women's centers and shelter homes, and I remember those women being so emotionally attached to toxic family members, and I would simply tell them to just come out of it, and they'll be like, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर सकते. And I was like, क्यों नहीं कर सकते? आप खुद को खुद ही मतलब प्रॉब्लम को आपने खुद ही बनाई हुई है, और अब आप कह रहे हैं कि हमें सोल्यूशन दे दो. तो सोल्यूशन तो आउटसाइड नहीं मिलेगा, सोल्यूशन तो आपको आपके अंदर से मिलेगा, क्योंकि आपने खुद प्रॉब्लम बनाई हुई है, राइट? सो स्टॉप आस्किंग and not verbally asking. I'm not saying कि आप मुंह से बोल रहे हैं कि भाई हम आपके बगैर नहीं रह सकते और हम people pleasers हैं. जो भी आपके internal monologue आपके लिए बार बार ये construct कर रहा होता है scenarios.
और वही बात कि आपके इमेजिनेशन में बड़े मसले खुद ही बन रहे होते हैं बजाय इसके कि, और सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, सिट डाउन, बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट. साइकोलॉजी में बहुत से लोग इसलिए आते हैं कि वो अपनी मदद खुद करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई हमसे ज्यादा अच्छा समझ हमें कौन सकता है, हम ही खुद समझ सकते हैं ना खुद को. सो ट्राई टू हेल्प योर सेल्फ. एंड हाउ यू आर गोना डू दिस? जस्ट सिट डाउन, reflect back, and this is your solution. That's it. This is what I have to say. And this is not a one day task. Again, it just works. It takes months of practice and work, just how you have started right now. Yeah, I hope it was some kind of help. Yeah, thank you so much. Yeah, any more questions? And yes, Aisha. Yes. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. अच्छा, मेरा सवाल ये था आपसे कि आई वुड से कि आई एम अ क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेटर, और मैं तब तक प्रोक्रेस्टिनेट एक चीज़ को कर रही होती हूँ जब तक कि कोई दूसरी कोई चीज़ ना मिल जाए कि जिस पे मैं सोचूं. तो हाउ टू स्टॉप दैट? एंड आई हैव अनदर क्वेश्चन आल्सो कि I mean, in a constant loop of in a toxic relationships and friends. कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक फ्रेंड थी मेरी, और she had a really avoidant behavior, और she used to say कि I am I'm also a very emotional person. Sorry. It's all right. It's all right. You can type, or you can just contact me directly if you can't. Yeah, can you just write your email or any contact number so I can contact you? My email on the chat, and then we can discuss things there rather than. अच्छा, पहला जो आपका सवाल था ना आयशा, I'm glad that you are showing up for yourself. यार, प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए पता है, मैं खुद के लिए जो मैं सोल्यूशन था ना मेरे लिए, वो पता है क्या था? मैंने ना अपने सामने रोज लिखा होता था, शट अप, सूट अप एंड शो अप. ये एक फ्रेज है. ये ना मैं एक किताब पढ़ रही थी, and there was this man who wrote it for himself, and he was I don't know, he was working for some company, and he was a big thing, and he said this is the only way to solve procrastinating and delaying your tasks and not being consistent and in a loop of problems. Suit up and show up. That's it. अभी नहीं, अभी ये नहीं सोचना कि अभी कर लेती हूँ, अभी नहीं, अभी ऐसे नहीं, इसको बाद में कर, नहीं, उठो और फौरन कर लो. 2 सेकंड भी खुद को ना दो, फौरन करो, and your problem is solved. I know it's very, very difficult. It took me 4 years, Aisha, trust me. It took me 4 years to develop the habit of consistency and ignoring procrastination. Yes, please. Yes. Yeah, please ask. Mehrun Nisa wants to ask something. Aisha, thank you so much. Please contact me, and I hope I can help you somehow. Yeah, I have another question. So, this is right now we're living in an era where it's social media and you have to be perfect in everything. And then here are a lot of the living standards that you have to follow. And you want to be really perfect. But the thing in our daily life, I don't know if a lot of people can relate it with not. And even I was searching on it as well. Like a feeling of being unwanted. Okay, it's not like it's a term that we usually use, like it's a feeling. Like for instance, if I'm talking to anybody else, okay, and मुझे लगेगा कि if I'm talking too much, then like I'm talking too much and I'm मैं दूसरे बंदे को ज्यादा तंग ना कर दूंगा कुछ भी, या sometimes, yeah. So like it's kind of feeling. And here's also a thing that you speak less, it means more good, like you up come, yeah. So it's also a kind of feeling. So what do you think about it? Like I think here's an overthinking more, like you overthink things more. जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये आपकी अपनी thoughts होती हैं जो आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे होते हैं, and then you name it into different things. As you said that because when you're growing up, you're trying to identify yourself, you are basically more focused on self-analysis, that how you can be a more emotional, intelligent person, and how you can regulate your emotions. So you try
to make yourself a very perfect and a kind of self-aware so that you don't make blunders even through your communication. So, what would you say about it? You're asking about because you said okay. So first thing is overthinking. Second thing is comparing yourself with social media people, right? And then overthinking about your own self. Either you're speaking too much or you're not speaking too much, right? Is this what you want to help with? No, okay. Social media thing is, आप कहीं ना कहीं तक उस चीजों को मैनेज कर लेते हो because Yeah. now you have a social life and if you have good finances, you get to know, okay, you do everything. Okay, अगर आप किसी से ज्यादा बात कर रहे हो, okay, you are talking a lot to some person, even if you're not talking too much, okay, but you feel like, oh God, if I'm talking too much, like मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया अपने बारे में, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, and then you are thinking constantly about that thing again and again. Okay, if I have, here's a thing, aura is a very big thing, but oh God, I shouldn't have spoken. मुझे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था. What would that person be thinking? So Yeah. the thing जहाँ से सब कुछ आ रहा होता है, it's overthinking, and Yes. unfortunately some people have overthinking की इतने ज्यादा habit that उससे anxiety attacks भी आते हैं. Yes. उससे आप पैनिक भी बहुत ज्यादा कर जाते हो और आप उस तरह से अपनी लाइफ के अंदर उस तरह से डिसीजंस नहीं ले पाते ना. यू थिंक अ लॉट. सो इट्स आई गेस इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट टू बी हम्बल ऑन योर ओन सेल्फ that we are human. Okay, I'm saying all these things to you, but yet I'm unable to implement these things on myself. So Yeah. that's yeah. अच्छा मेहरुनिसा, यहाँ पे ना आपको सिर्फ थोड़ी सी रीस्ट्रक्चर की जरूरत है. आप जो कह रही है ना, ये हम सबके साथ होता है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ बैठे हम सब कह रहे हैं कि नहीं हम ओवर थिंक नहीं करते. मैं खुद बड़ी ओवर थिंक करती हूँ, लेकिन मैं ना, हम खुद साइकोलॉजी में एक बड़ी सेल्फ हेल्प से एक एक्सरसाइज यूज करते हैं. एंड इफ आई एम टेलिंग यू दिस, ट्रस्ट मी, आई हैव डन दिस ऑन माई सेल्फ. तो उसको हम कहते हैं लिमिटिंग योर वरी टाइम. आपने एक स्केड्यूल बना लो कि मैंने दिन में सिर्फ 1 से 2 बजे के बीच में, 1 PM से 2 PM के बीच में ना वरी करूंगी. बाकी पूरा दिन मैंने खुद को अलाउ नहीं करना ओवर थिंक करने को. बस सिर्फ वही 1 घंटा है मेरे पास, उसमें जितना वरी कर सकती हूँ मैं करूंगी बस. फिर उस 1 घंटे को ले आओ 45 मिनट्स पर, फिर उसको 30 पे लाओगे. ओ मेहरुनिसा, आई हैव ओनली 30 मिनट्स टू वरी, लेट्स डू इट. एंड यू नो व्हाट, यू विल नॉट इवन गेट द टाइम टू वरी. मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ. चले, अभी हम बात कर ही रहे हैं हार्ट टू हार्ट. ऐसा होता था कि अंडरग्रेड के अंदर ना मैंने 3 रिसर्चेस की, ठीक है. और जब आखिरी दिन एक रिजेक्ट हो गई, दूसरी रिजेक्ट हो गई, मैं बड़ी हिम्मत करके बैठी थी कि नहीं ये तीसरा तो बड़ा अच्छा टॉपिक है, आई डू इट. ये जो मैं अभी दानियाल को क्लाइमेट एंजाइटी के में बताई थी, आई डिजाइन्ड एन इंटरवेंशन एंड इट गॉट रिजेक्टेड. एंड ट्रस्ट मी, इट वाज द वर्क ऑफ 1 year एंड इट गॉट रिजेक्टेड इन अ सेकंड एंड आई कुड नॉट हेल्प बट क्राई ओनली. अब हुआ पता है क्या, जब मैं आखिरी सेमेस्टर में आई ना, तो मैंने ना, आई एम द पर्सन हु वर्क्स well ahead of myself. I work before कि वो काम पहली, तो मैं 6 महीने पहले अपना थीसिस सबमिट करने गई और बिल्कुल बस उसका एक वो पोर्शन रहता था. I was really proud of myself and you know what, my HOD told me it's rejected. अभी कोई प्रेजेंटेशन नहीं हुई थी and she told it to my face. आपको पता है उस दिन मैंने क्या किया? उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इतना रोऊंगी कि I had given so much of my time and effort to it and it just got rejected in just 1 second by not even seeing what it is. ठीक है, मैंने बताया क्या किया. अभी मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने सबको ये वाकया में सुनाती हूँ. मैंने अपने आप को 3 दिन दिए. I had only a deadline of 3 days कि I have to present a new topic and I was like, इफ्रा 3 दिन है, रोना नहीं है बिल्कुल भी, and you have only 3 days and trust me if it's funny or not, but I was like, ये 3 दिन है, उसके बाद मिलके रोएंगे, खूब सारा रोएंगे एंड वील क्राई. और वो उसके बाद मैं अभी तक रोई नहीं हूँ उस चीज पे, बिकॉज आई लिमिटेड माई वरी टाइम एंड आई लिमिटेड माई इमोशन फॉर दैट वन टाइम एंड आई वॉज नॉट सप्रेसिंग इट. अगर यहाँ पे कोई पॉइंट कहे कि मैम यू वर ट्राइंग टू सप्रेस, आई डिड नॉट सप्रेस दैट. आई एक्सेप्टेड इट दैट आई वॉज ब्रोकन एंड आई वॉज सैड, बट आई चैनलाइज्ड इनटू समथिंग व्हिच वाज कि इसको बाद में, इसके बारे में परेशानी बाद में ले लेंगे. तो वो जो लिमिट कर लेते हो ना आप अपने ओवर थिंकिंग का टाइम को, तो वो बहुत हेल्प करता है. मेहरुनिसा, प्लीज जस्ट गो टुडे एंड ट्राई इट. पूरे दिन में नहीं वरी करनी आप, बस सिर्फ अभी देखो अभी 9:14 हो रहा है, आपको जी मैं 9:40 से लेके ना 9:45 तक आज सिर्फ सारा कुछ ओवर थिंक करूंगी, मेरे पास इतना ही टाइम है. एंड पूरा दिन अगर मैंने किया तो मैं खुद को पनिश करूंगी किसी तरीके से, ठीक है. तो try this out, 15 to 30 minutes, worry as much as you can, write down all your thoughts, जितने भी पॉप अप हो रहे, मैं बोलती बहुत हूँ, मैं कम बोलती हूँ, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, उसने मुझे ये क्या, सब कुछ लिख लो, सबको सारे मसले आज उसी वक्त कर लो.
लेकिन उसके बाद पूरा दिन परेशान नहीं होना, एंड दिस विल लिमिट योर प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह. आई नो इट हैज वर्कड फॉर मी, इट विल फॉर यू टू. यस. Yeah, Anything inshallah. else? Thank you so much. You're welcome. You're welcome. Yeah. Anything else? Okay. There's another question. Okay, I try to help others, but I feel hesitant to ask for help for myself when I need it. Secondly, I have a focus issue. I cannot focus on a thing for a long time. Like when I'm studying, I face a lot of difficulty in focusing. Okay, I do a lot that too. मुझे भी बड़ा focus में आजकल हम सबको ही मसला होता है. हम सबका ये मोबाइल और रील्स की वजह से इस तरह हाल हो गया है कि हमारा attention span इतना कम हो गया है कि हमें लगता है कि हम किताबों को भी काश स्क्रॉल कर सकते हैं और ये टॉपिक्स को मिस कर सकते हैं. इट्स अ वेरी वेरी कॉमन थिंग एंड नथिंग टू वरी अबाउट ऑनेस्टली. रमीशा, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, सबसे पहले तो ये कि इफ यू फील हेजिटेंट टू आस्क फॉर हेल्प, हेजिटेंट को बीच से निकाल दो और हेल्प एक दफा मांग लो. जस्ट गो एंड आस्क. जैसे वो भी मैं आप में से किसी को कह रही थी ना, लर्न टू से नो. एक्शन में ही सोल्यूशन है आपका. एक एक्शन लेना पड़ेगा. मैंने आपको बताया ना कि एक्शन और रिएक्शन के बीच में आपका डिसीजन है, तो ये हेजिटेंट को बीच में से निकालो. जस्ट वंस आस्क, बट प्लीज फाइंड आउट द राइट पीपल टू आस्क द हेल्प फ्रॉम. ये आपको डिसर्न करना आना चाहिए कि किन लोगों से आप हेल्प ले रहे हैं. ठीक है, जस्ट गो एंड आस्क, excuse me, can you please help me out, I'm having a problem. Communication is the key, guys. Communication is the key. If you don't communicate, यहाँ बैठ के मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके मसले क्या हैं? Okay, so just try it for once. Ramisha, it's your task. Next time मिलने से पहले आपने मुझे बताना है. मैं आपका नाम याद रखूंगी और मैं आपसे पूछूंगी अगर आप नेक्स्ट किसी वर्कशॉप में आएंगी तो I'll ask you that did you ask for help? This is your task for today. And focus इस तरह है कि मैं खुद एक पोमोड्रो टेक्निक, अगर शायद कुछ किसी ने पढ़ा हो तो मैं वो करती थी कि फोकस करने के लिए खुद के लिए मैं ये करती थी कि मैं 25 मिनट लगातार पढ़ती थी. 25 minutes without an ouch, without a break, nothing eating, not doing anything but just studying. और फिर मैं 10-15 मिनट की ब्रेक ले लेती थी. उसमें मैं इंस्टाग्राम भी यूज करती थी और जो भी मुझे देखना, कोई इवन रील देखनी है या कोई भी शो देखना है तो वो मैं कर लेती थी. तो limiting your own time will increase your focus inshallah. Yeah, but ये जो मैं सब कुछ बता रही हूँ ना, जितने भी वाइस क्रैक्स हैं, ये ऐसे नहीं होंगे कि आप आज करो और फिर आपको लगे बस अब तो ये वर्कशॉप ले ली है, मेरा तो काम हो गया, सोल्यूशन मिल गया. नहीं, ये मैंने बताया ना 4-5-6 साल भी लग जाते हैं इसके अंदर. बट आप अपने लिए कर रहे हैं तो फिर what are the odds? You're doing it for yourself, so it's always better. No, don't you think, Ramisha? Yes, you are right. Oh yes, yes, you are right. We can do yes, this for ourselves. yes, and you have to help yourself right now. Yes, inshallah, I will do it. Good, very good. Anything else? I'm really happy that there's so many bombardment of great questions, and I'm really glad that kids are helping themselves like that. That's awesome. Five more minutes. I'll take more questions and then I have a question. Yes. I have a lot of things in my bucket. For example, I have multiple skills. During all these years, I have learned all multiple courses, multiple degrees, Wow. and I wanted to use them to teach others, to do something for others. But I always feel difficulty in taking an initiative. For example, I was thinking that I will make an Instagram page and I will show up all my skills, that all these things I can teach to others. But I always procrastinate, or I always do late in these things. I always think I will do this at that time, I will do this at that time. And in this way, I always delay the things. So, how I can get a courage to initiate the things? The courage will only come if you do that. That's the only solution. करेज, आप बैठ के अगर सोच रहे हो ना कि मुझे कहीं से हिम्मत मिल जाए, कोई मुझे कुछ कह दे, कहीं से कोई पुश मिल जाए, कोई नहीं आने वाला. कहीं से वो पुश नहीं मिलेगी ना, आपको कहीं से हेल्प मिलेगी. ट्रस्ट मी, दिस इज आई एम बीइंग वेरी ब्लेटेंट अबाउट इट.
You are the one who's going to solve your own issues. You just come, you can ask for help like from these workshops, from books. मैं तो workshop नहीं लेती थी, मैं तो किताबें पढ़ा करती थी। मुझे याद है जब मुझे इस तरह के मसले होते थे तो मैं किताब पढ़ लिया करती थी, एंड उसके बाद मैंने फिर साइकोलॉजी में अपना BS भी कर लिया अपने आप के मसले हल करने के लिए, राइट? तो इसी तरह ही होगा रमीशा। प्रोक्रेस्टिनेट कैसे आप रोकोगी अपने आप को डिले करने से? कि वही बात, शट अप एंड सूट अप प्लीज एंड शो अप। यू हैव नो अदर वे। अभी नहीं करोगे, 10 दिन बाद करोगे, करना तो फिर भी आपको ही है ना। अभी करो या 2 दिन बाद करो या 1 महीना बाद करो, फिर आप रिग्रेट करोगे कि ओ उस वक्त मैं कर सकती थी। तो उस रिग्रेट से अच्छा है अभी इसी वक्त उठो और कर लो। और ये भी मत सोचो कि मैं करने जा रही हूँ उस काम को। ये भी मत सोचो कि अच्छा अभी मैं इंस्टाग्राम पे लॉग इन करके अकाउंट बनाती हूँ, अभी बना लो। बस सोचो मत। सोचोगी तो वो आपको वही बात जो मैं बार बार कह रही हूँ कि पैरालाइज कर देती हैं आपकी अपनी थॉट्स आपको। तो जस्ट सूट अप एंड शो अप। ये तो ना मुझे जैसे अपना एक टैग लाइन बना देनी चाहिए इस लेक्चर की, इसकी, कि यू नीड टू शो अप फॉर योरसेल्फ एंड दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। there's another question, let's talk about that. I hope it's helping. ये वाइस क्रैक्स जो हैं ये एक वन सॉल्यूशन ऐसा नहीं है, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, बट सॉल्यूशन आपके अपने पास है, उसको बीमारी बनने से पहले ही सॉल्व करना हमारा काम है, ठीक है? When my exams start, I'm not focusing. I'm more interested which drama or reels. How can I stop this habit? Switch off your phone, please. That might be the solution. ये ड्रामा और रील्स जो है ना ये आपको बाद में भी मिल जाएंगी, बट ये एग्जाम एक दफा चला गया फिर तो नहीं आएगा, और अगर आएगा तो फिर आपको ऐसे सप्ली में देना पड़ेगा या रिपीट करना पड़ेगा। तो ड्रामे तो चलते रहेंगे, ये रील्स भी आपको यूट्यूब पे कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, और ये ड्रामा तो पूरे के पूरे पड़े होते हैं आजकल। तो इतनी सारी फ्री वेबसाइट्स हैं, यू कैन गो एंड जस्ट ट्यून इन एंड वॉच एनीथिंग यू वांट। सो अभी पढ़ ले और ड्रामा बाद में देख लीजिएगा। व्हाट से अस्मा? ये 2-3 बातें हैं, आई जस्ट वांट यू गाइस टू राइट इट डाउन विद यू गाइस सो दैट इट माइट हेल्प यू। ये मैं लिख रही हूँ, या आप भी अपने पास लिखें, अपने सामने अपने टेबल पे रख दिया करें। ये एक चीज है, ठीक है? ये मैंने अपने टेबल पे लिखी हुई थी, हमेशा अपने बोर्ड पे लिखी हुई थी। दूसरा ये था, ये एक चीज है, या तो करे मत और या अभी कर ले। तो एंड प्लीज लिमिट, थर्ड थिंग, द लास्ट थिंग, लिमिट योर वरी टाइम। इसका ये मतलब नहीं है कि प्लीज कम वरी किया करें, वरी करें, मैं ये नहीं कह रही वरी ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम वरी ना करें, इतने तो मसले हैं हम सबके, उसको लिमिट कर दें। आज बस मैं इतने से इतने घंटे में खूब सारा परेशानी लूंगी, सबको सारी परेशानियां मैं इसी टाइम में ले लूंगी, उसके बाद आई एम नॉट अलाउड टू डू दैट, ठीक है? यस, ये प्लीज लिख लें अपने पास, ये बड़ा मसले हल कर देते हैं। मेरे तो बड़े ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। Yes, anything else? So should we call it a day? Should we end it? Or anything more, anything else? Yeah. I have given my email. You can contact me if there's something you could not share, and we will solve it, okay? It might take some days, it might take some months, but solution mil jayega. Trust me. You are here. This is itself the intimation for you that you're solving something. You're fixing, you're trying to help yourself, okay? So is that it? कोई thumbs up दे दे ताकि फिर हम बंद कर सकें, end कर सकें, if you want to. All right, thank you so much each one of you for joining. Ramisha ke sawal, Mehrun Nisa, Daniel, Asma, and everybody who there was Aisha as well. And Ramisha to usko to task diya, usko to main next mein milungi aur puchungi. So thank you so much each one of you. जिनके नाम शायद मुझे नहीं भी शो हो रहे, तो वो भी keep helping yourself. If you help yourself, that is the only way you can help others. Okay, thank you so much. Take care and Allah Hafiz. Thank you.